Hello peoples, how are you all? I'm Sejal Tripathi aka Bibliophile. So I'm here with a new book. Okay, this book is new but the series is not. We have already completed 3 books from the series and this is the 4th one. Yeah, it is Before We Say Goodbye. Okay, so let's first talk about the cover page. Look at the cover page, it is pink and I love pink color. I buy this 4 series just because of their cover pages. They are very good. I mean, wow, like, see, this is nothing very unique but it is beautiful and this is so small. I just complete it in a day, so I think yes, it is a go read. I mean, if you're going for travel or if you want to gift someone this book, you can gift it. Okay, for my perspective, I mean, these all 4 books are very good, but as I've already told you that I love the 3rd book from the series, that is Before the Memory Fades. Yes, I like this book too, but that one book is the best from all 4 books. Okay, so let's talk about this book, then we'll discuss that what book I love the most and what I don't like at all. So let's read this book. 4th novel in Toshikazu Kawaguchi's internationally best-selling Before the Coffee Gets Cold series. The regulars at the magical cafe Funicula are well acquainted with its famous legend and extraordinary time-traveling offerings. Many patrons have returned with old frames, made amends with estranged family, and visits loved ones. But the journey is not without risk, and there are rules to follow. Travelers must have visited the cafe before and crucially must return to the present in the time it takes their coffee to go cold. मतलब कॉफ़ी ठंडी होने से पहले, दिस इज़ द सेम, दीज ऑल आर द रूल्स आर ऑलरेडी सेम इन ऑल द बुक्स. आपको कॉफ़ी ठंडी होने से पहले उसे पीकर प्रेजेंट में वापस आना पड़ेगा, अदरवाइज आप घोस्ट बन जाओगे. ओके. In the tradition of Toshikazu Kawaguchi's sensational Before the Coffee Gets Cold series, readers will once again be introduced to a new set of visitors. The husband and something important left to say, the women who couldn't bid her dog farewell, the women who couldn't answer a proposal, and a daughter who drove her father away. Featuring signature heartwarming characters and wistful storyline in the beautifully haunting Before We Say Goodbye. Would you visit if you could travel through time? ओके, सो येस, इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल गाइज कि क्या आप ऐसे कैफ़े में जाना चाहोगे जहां आप अपने पास्ट में विजिट कर सकते हो बट विदाउट चेंजिंग योर प्रेजेंट. I mean, or if you want to go, whom would you want to meet, or who's the person who you can discuss anything in your comment. I want everyone's answer in comment. Okay, so it has 4 chapters as you all have, and yes, one relationship map of characters like this. Okay, so ये मुझे बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं मिला, तो ये मेरे लिए काफ़ी यूजलेस साउंड हो रहा था बिकॉज लुक बहुत ही मिसप्रिंट है, इतना स्लैक नहीं है कि मैं इसे पढ़ सकूं एज यू कैन सी. सो मुझे इसमें वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स नहीं है, और जो कैरेक्टर्स न्यू है तो वो 3 बुक्स स्टार्टिंग की पढ़ के आप रिलेट कर पाओगे कि कौन सा कैरेक्टर कैसा है. So ये इतना टफ नहीं हो रहा था लास्ट बुक में, बट all these books are good and this book are too good. I mean, if you want to read, you can read this book, but मैं ये कहूँगी कि आप इससे पहले वो 3 बुक्स पढ़ लो. बट हाँ, अगर आप उससे नहीं भी पढ़ रहे हो तो कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अगर आप वो बुक्स नहीं पढ़ोगे तो आप ये बुक्स रिलेट ही ना कर पाओ, समझ ही ना पाओ इस बुक को. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन अंडरस्टैंड दिस बुक, दिस इज़ गुड, दिस इज़ टू फॉर बिगिनर्स. अच्छा, बिगिनर्स को ऐसा होता है ना कि कोई ख़राब बुक ना आ जाए, कोई अच्छी ही बुक पढ़ूँ, तो येस, ये अच्छी बुक है. यू कैन बाय तोशिकाजु's बुक. इट इज़ वेरी गुड, वेरी फैसिनेटिंग, इमोशनल, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं. और बिगनिंग में ऐसा होता है कि हमें शॉर्ट स्टोरीज ज़्यादा पसंद आती हैं क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाती है, हमारे अंदर मोटिवेशन आती है उसे बुक्स को कंटिन्यूसली पढ़ने की. तो येस, ऑल बुक्स आर इन शॉर्ट स्टोरी फॉर्म, सो आप इसे खरीद के पढ़ सकते हो और आपके लिए ईजी भी है. आई मीन, ऑन गोइंग स्टोरी है, यू कैन रीड इट. पर्सन हु लाइक novels can read this book and who like short stories can too read this book. Let me tell you the chapters. Okay, I've tell you 2 chapters starting के, क्योंकि 4 ही chapters हैं, so I don't want to be a very big spoiler. The first chapter is the husband. This is the story of a husband जिसकी वाइफ अभी वेजिटेटिव स्टेज में है इन प्रेजेंट, जो कुछ भी बोल नहीं सकती, कुछ सुन नहीं सकती, एंड शी कांट ऑल्सो स्पीक. तो और बट ये जो हस्बैंड होता है ये पूरी लाइफ इन्हें ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है, पूरी लाइफ ट्रैवल करते हैं. केवल मीको, इनकी जो वाइफ होती है, उनसे मैरिज करके ये ट्रैवलिंग पे चले जाते हैं. इनके बेबीज़ होते हैं पर ये ध्यान नहीं देते. सो अपनी वाइफ के साथ इन्होंने बहुत कम टाइम स्पेंड किया होता है. इवन जो ये कहना चाहते थे, इन्हें जो भी एक्सप्रेस करना था हाउ मच
ही लव हर, ये कुछ नहीं कह पाते हैं। और उसके बाद जब ये लौट के आते हैं तब इन्हें वो वेजिटेटिव स्टेज में मिलती हैं। शी wasn't able to talk, even to listen or टू सी ऑल्सो। तो उसके बाद ये सोचते हैं कि क्यों ना ये इस कैफ़े के बारे में सुनते हैं, सोचते हैं क्यों ना मैं पास्ट में जाऊँ। और इन्होंने ये चीज़ एक मैगज़ीन से पढ़ी हुई होती है, तो ये चाहते हैं कि ये पास्ट में जाएँ और अपनी वाइफ से एटलीस्ट कुछ तो बोल के आएँ कि हाँ, ही वॉन्टेड टू फील, ही वॉज इन अ वेरी गिल्ट, कि ही वॉज इन रिग्रेट, ही वॉज इन गिल्ट कि मैं अपनी वाइफ से एटलीस्ट अपने इमोशंस एक्सप्रेस तो कर पाता, पर वो नहीं कर पाते हैं। तो वो पास में जाते हैं। एंड यूल मे फाइंड दिस बोरिंग, बट यूल थिंक कि आपको मुझे सुन के लग रहा होगा कि ये स्टोरी बोरिंग है, बट दिस इज़ नॉट। क्योंकि जब वो अपनी वाइफ से मिलते हैं तो वहाँ पे सामने उनके सारे बच्चे खड़े होते हैं जो वो कैफ़े में प्रेजेंट हो जाते हैं। उनकी वाइफ शॉक हो जाती है कि वो एकदम से अपीयर कैसे हुए, बट जो वेट्रेस होती हैं काजू, वही समझ जाती हैं कि ये फ्यूचर से आए हुए हैं। उसके बाद फिर ये चाहते हैं, ये बताना नहीं चाहते हैं कि अपनी वाइफ को कुछ बताएं, बट स्टिल ही टोल्ड अपनी वाइफ को कि आप वेजिटेटिव स्टेज में से चली जाओगी, बट वेरी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ, और आपके बिना मेरी लाइफ खत्म हो गई, ये वो। सो ही एक्सप्रेस मेनी थिंग्स टू हर एंड शी बिकम वेरी इमोशनल। द चिल्ड्रंस बिकम एंग्री टू, बट इमोशनल, कि आप इतने दिनों बाद अब आए हो हमसे मिलने, ऐसा। बट वो इमोशनल भी बहुत ज़्यादा थे, तो ऐसा सब चल रहा था। तो ये बहुत इमोशनल थिंग है। और बच्चे एंग्री भी थे कि आप ये बताने के क्यों आए हो, अब एटलीस्ट वो जितना जी रही थी उतना तो शांति से उन्हें जीने देते। तो ये सारी चीज़ें थी, बट ये अच्छी स्टोरी है। इट इज़ नॉट दैट इमोशनल, नॉट दैट वेरी गुड, बट इट्स गुड। ओके, नाउ द सेकेंड स्टोरी इज़ द फेयरवेल। ओके, सो ये एक डॉग की स्टोरी है। दो कपल्स होते हैं जो पेरेंट नहीं बन पाते हैं, सो वो एक डॉग लेकर आते हैं अपने घर पे, जिसको वो अपने बेबी की तरह रखते हैं। बहुत सारा खेलते हैं, बहुत उसके संग टाइम स्पेंड करते हैं, मेमोरीज मेक करते हैं। उसके बाद वो आफ्टर 13 ईयर्स उस डॉग की डेथ हो जाती है। एंड व्हाट हैपन इज़ कि जब वो उस डॉग की तबीयत नहीं सही होती है, वो एक अच्छी स्टेज में नहीं होता है, एक बीमार होता है, तब वो दोनों कपल्स सोचते हैं कि हम इससे दूर नहीं जाएंगे, मतलब इसके लास्ट डेज में हमेशा इसके साथ रहेंगे। डॉग का नाम होता है अपोलो। तो वो सोचते हैं कि हम उसके लास्ट डेज में हमेशा उसके साथ रहेंगे। बट जैसे ही उसकी डेथ होती है, उस टाइम वो जो विमेन होती है वो सो जाती है। सो वो उसके वेरी लास्ट मोमेंट में उसके साथ नहीं होती है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। वो सोचती है कि मुझे पास्ट में जाके अपोलो के संग खेलना है, उसे फील करना है, इन एवरीथिंग दैट वार्मथ आई वांटेड टू फील। तो इसलिए अब वो क्या करती, वो इस कैफ़े में आती है ताकि वो पास्ट में जा सके और अपोलो से मिल सके। So this is one of the very emotional story because I already had a dog in past. So for me it's a very emotional story. उसके बाद वो पास्ट में जाती है एंड वो अपोलो से मिलती है, उसके साथ खेलती है, बट उसका हस्बैंड समझ जाता है कहीं ना कहीं कि ये पास्ट में फॉर अ रीज़न आई है। सो वो पूछता है कि व्हाट हैपन, व्हाई यू कम हियर। सो वो बताती है, पास्ट में जाती है तो उसका डॉग उस टाइम बिल्कुल हेल्दी होता है, 12 ईयर का होता है, एंड 13 ईयर आफ्टर 1 ईयर उसकी डेथ होने वाली होती है, बट अभी वो हेल्दी है, बिल्कुल खेल रहा है। तो उसके संग खेलती है और अपने हस्बैंड को बताती है कि ऐसा है, आफ्टर 1 ईयर हमारे डॉग की डेथ होने वाली है। और उसका हस्बैंड उस चीज़ को, तो वो कहता है फिर तुम, तो कहती है कि, तो वो समझाती है कि मुझे बहुत गिल्ट था क्योंकि मैं उसके एंड मोमेंट पे भी उसके साथ नहीं थी, मैं सो जाती हूँ। और तो उसका हस्बैंड उसे समझाता है, यू नो व्हाट, मैंने तुम्हें एक चीज़ नहीं बताई है कि मैं तुमसे जब भी तुम पूछती थी कि अपोलो सो गया ना, ऐसा हाँ ही स्लेप्ट, बट ऐसा नहीं होता था। वो कभी पहले नहीं सोया, वो केवल सोने की एक्टिंग करता था। ही ऑलवेज एक्ट लाइक अ स्लीप। वो सोने की एक्टिंग करता था और जब तुम सो जाती थी तब वो तुम्हारे पास आता था, ही लिक योर आइज एंड देन गो टू स्लीप। तो हमेशा ऐसा होता था। तो हो सकता है, मे बी इट इज़, प्रोबेबली इट इज़ पॉसिबल कि वो तुम्हारे सोने की वजह से ही वो शांति से सो पाया। आई मीन व्हेन यू स्लीप, हो सकता है तुम जग रही थी इसलिए वो सुकून से अपनी डेथ भी रिसीव नहीं कर पा रहा था, वो अपनी डेथ के पास भी शांति से सुकून से नहीं जा पा रहा था। तो जैसे ही तुम सोई उसे अच्छा फील हुआ होगा, जैसे ही तुम सोई तुम्हारे सोते ही वो भी सो गया एंड ही जस्ट डाइड। सो दैट इज़ वेरी इमोशनल, दैट वाज वेरी इमोशनल। तब वो बहुत रोती है, उसे रियलाइज़ होता है कि अपोलो से कितना ज़्यादा फैक्शनेटेड था एंड ही लव हर सो मच एज अ मदर। So that is a thing. This story is also very emotional. I mean, yeah, all those stories and all those books are emotional. क्योंकि जब वो पास्ट में मिलने जा रहे हैं तो obviously कुछ emotional aspect के साथ ही जा रहे होंगे. So obviously these all are emotional. I mean, while reading these stories, you'll think कि अगर आप उस जगह पे होते तो आप क्या करते? What you was feeling and what you do, what they'll do. I mean, आप read करते हो तो समझ में आता है कि ये क्या करेंगे आगे चल के. So these all things are very fascinating. These
whole series is fascinating. So that is good. Okay, so I think that is for it, and now I'm going to compare all those 4 books and which book is the best and which is not. हो सकता है वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाए, बट प्लीज़ वॉच टिल एंड, बिकॉज आपको इससे हेल्प मिलने वाली है कि कौन सी बुक आपको खरीदनी चाहिए अगर आप खरीद रहे हो, और आपको सीरीज़ खरीदनी चाहिए या नहीं, फॉर श्योर, विद अ लॉयल रिव्यू. Okay, so I'm here with the 4 books. This, Before the Coffee Gets Cold, Before the Coffee Gets Cold, Tales from the Cafe, Before the Memory Fades, and Before We Say Goodbye. Let's see the first book. Okay, I love this book a lot because as we all know, first impression is the last impression. So इसी book ने मुझे fascinate किया था बहुत ज़्यादा पूरी सीरीज़ को पढ़ने के लिए. So that's why I liked. और ये इस अकेली बुक के रिव्यू पढ़ के, इसका समरी पढ़ के ही मैंने पूरी सीरीज़ खरीदी थी कि नहीं, मुझे तो पूरी सीरीज़ पढ़नी है. So yes, this is my very first favorite book of the whole series. Yes, so yes, if you guys wanted to read any book from the series, this should be the first book you should read, because this is the best. I mean, yes, I love all those 4 characters. It is beautiful. I mean, yes, first impression is a last long impression जो ज़्यादा टाइम तक हमारे साथ रहता है. So this is the one. Now, Before the Coffee Gets Cold, Tales from the Cafe, this is not very emotional. I mean, yes, वही perspective है, वही सब कुछ है. I should say this is not boring, but this is not very good to buy. अगर आप कोई एक बुक खरीदना चाहते हो तो ये बुक मत खरीदना. हाँ, सीरीज़ में तो ये आएगी, बट अगर सिंगल बुक खरीद रहे हो तो नो, डोंट गो फॉर दिस बुक, बिकॉज अगर आपको खरीदनी है तो वो बुक खरीद सकते हो. दैट वाज वेरी मच गुड. और ये ब्लू वाली बुक जो आने वाली है अभी, बिफोर योर मेमोरी फेड्स, वो भी ज़्यादा बेटर है. सो दिस इज़ नॉट दैट गुड. आई मीन, ये स्टोरीज आर quite similar, and that is a cafe, those are the rules. तो वही उसकी आधी स्टोरी, उसकी लेफ्ट आउट स्टोरी इसमें आगे कंटिन्यू हुई है. सो दैट इज़ नॉट, इट जस्ट अ continuing, it's just a uniform story, like जो उसमें चल रही थी वो इसमें चल रही है. So that is not, there is not nothing special, like, okay. Now this book stole my heart. This is the favorite book of mine. I mean, शायद फर्स्ट बुक वो सबसे पहले मैंने पढ़ी थी इसलिए मुझे पसंद आई है, बट दिस इज़ द बेस्ट बुक फ्रॉम द सीरीज़. अगर आपको इस पूरी सीरीज़ में कोई एक ही बुक खरीदनी है, go for this book. Yes guys, this is the best book. I wanted to read this book at like as many times as I can. Like, this book is very good. तो अगर आपको उन चारों में से कोई एक ही बुक खरीदनी है तो गो विद दिस बुक. इसकी स्टोरीज बहुत अच्छी हैं, चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं, और काफ़ी प्यारी बुक है. आई मीन येस, बट ऑब्वियसली इसमें फ्यूनिसुला कैफ़े नहीं है, इसमें डोना कैफ़े है. सो कैफ़े चेंज है क्योंकि दूसरे इनके 2 ब्रांचेस हैं इनके कैफ़े की, तो कैफ़े चेंज है, तो उसके लिए आप फर्स्ट बुक भी पढ़ सकते हो. तो यू कैन रीड 2 books, पर दिस इज़ द बेस्ट बुक. Now the 4th book, okay, this is good. I mean, like I think these 2 with the pair, I mean, सबसे worst was not worst. I mean, I don't hate this book. Okay, this book should be my first priority. Now this is my second priority, and this is my third priority, and this is the last priority. So don't buy this book alone. I mean, ये अगर 4 के साथ आ रही है तो फिर okay, but I don't think it's very special. I mean, yeah, it's good, but not that. I mean, it's just कि वो जो स्टोरी थी वो कंटिन्यू ही हो रही है इसमें, तो कुछ स्पेशल नहीं है, बट ख़राब नहीं है, मैं ये कहूँगी. लेट मी टेल यू कि आपको ये पूरी सीरीज़ खरीदनी चाहिए कि नहीं. गो फॉर इट. या दिस द थिंग. आई मीन, अगर आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू चाहिए कि इस बुक में क्या है, और आपको पूरी सीरीज़ पढ़ने का, तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड. मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें पसंद है, इसलिए मैंने पूरी सीरीज़ ऑर्डर की. बट आई शुड सजेस्ट, इफ़ यू आर अ बिगिनर, बाय 1 book, एंड इफ़ यू डोंट लाइक, पहले एक बुक खरीदो, उसके बाद अदर 3 books खरीदो अगर बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही हैं तो, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आपको पूरी सीरीज़ खरीदनी चाहिए. I do just love the whole series. That's why I should recommend the whole series. But for your perspective as a honest reviewing, I think you should not buy the whole series, because obviously you may find it, I mean, if you're a beginner, you may find it boring, but it isn't. I mean, I don't find it boring at all. But क्योंकि सेम स्टोरी सारी बुक्स में चल रही है, वही चीज़ें, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, तो हो सकता है आपको पसंद आए बहुत ज़्यादा. इतना आपको ऐसा लगे 2 books पढ़ने के बाद कि हाँ, हो गया ना, एक ही चीज़ चल रही है. तो कभी कभी होता है हमें हर बुक में कुछ न्यू एस्पेक्ट्स चाहिए, कुछ न्यू कोर चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि, तो फर्स्ट बाय 1 book, चूज एनी बुक एंड बाय देम, उसके बाद बाकी बुक्स खरीदना. So that's it for today's video. Bye bye, see you soon, and yes, don't forget to subscribe to the channel, hit the bell icon, like the video, comment your views, and share it to your friends. Bye bye, see you soon.